हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय डियर एंड लवली फ्रेंड्स यू who आर encouraging मी ऑल द टाइम्स एंड मोटिवेट्स मी। सो गाइस, आज हम एक अपनी सीरीज़ का नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसिड 220। सो बेसिकली एसिड 220 क्वालिटी के ऊपर बात करता है। जो इसका पूरा नाम है, जो डिटेल्ड नेम है इस पर्टिकुलर एसे का, उसके लिए मैंने आपको पहले कमिटमेंट कर दी है कि उसके लिए मैं एक अट्रैक्टिव सा चार्ट प्रिपेयर करूँगा और वो सब आप लोगों को मिल जाएगा। उससे आपको जो है नेम्स, पर्टिकुलर नेम्स लर्न करने में इजी रहेगा। और आपको उसके साथ एक कंट्रोल भी रहेगा कि क्या कौन सा पर्टिकुलर ऐसे मैंने कर लिया है, किसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है। और गाइस, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसी भी वीडियो में आपको देखते हुए कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट एंड इट्स मतलब इट्स माई प्लेजर टू रिजॉल्व योर क्वेरी। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर इज़ 971 6659527. You can call me, you can contact, you can text me, whatever you want, guys, you can. And I'm always there for you, always with you. And so start करते हैं guys। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज लीडरशिप responsibility. The engagement partner is responsible for the overall quality of the particular audit assignment assigned to it। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। तो देखते हैं। engagement partner is responsible for the compliance with all ethical requirements if any non-compliance found through inquiry or observation, then compare it with the firm's rules and procedure। First point. Second point is communicate to all the members in the firm
who should take appropriate action. तो ये सेकंड क्वेश्चन था गाइस हमारा. थर्ड क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस. Engagement partner is responsible for compliance with the independence requirement. Engagement partner is responsible for compliance with independence requirement. So once again, engagement partner is responsible for compliance with independence requirement if he finds any information, if he finds any information that create threat to independence, then evaluate such information with firm's policies and procedures. Then evaluate such information with firm's policies and procedures. Take appropriate action to eliminate such threat or to reduce them to an acceptable low level. तो गाइस ये थर्ड पॉइंट था हमारा. Question number 4, maintenance of client relationship. Engagement partner shall be satisfied that appropriate procedures regarding client acceptance or continuance have been followed. Engagement partner shall be satisfied that appropriate procedures regarding client acceptance or continuance have been followed. Second point, if engagement partner receives information
that would have caused firm to withdraw engagement, then communicate promptly to firm. Question number 5th, assignment of engagement team. Engagement partner ensure that the engagement team and audit expert who is not a part of engagement team shall be persons capable of, point number 1, performing and conducting audit in compliance with all statutory requirements and standards on and assess. ठीक है गाइस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे. सेकेंड पॉइंट इज capable of issue audit report that is appropriate in the circumstances. Now the question number 6. ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है गाइस, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा डायरेक्शन, सुपरविज़न एंड परफॉर्मेंस. तो देखते हैं गाइस. एंगेजमेंट पार्टनर shall be responsible for direction and supervision or performance of audit in accordance with standards on auditing and to make audit report. Second point, reviews. Auditor shall review the workings of engagement team as per the firm's policy and procedures. Auditor shall review the working of engagement team as per the firm's policy and procedure.
should ensure that sufficient and appropriate audit evidences are supporting the conclusion reached thereon. Next point is review the audit documentation and discussion with engagement team. ये हमने 2 पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पॉइंट्स वी हैव कवर्ड. नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3. Point number 3 is about consultation. Engagement partner should ensure that proper consultation from within the engagement team or from outside, such as auditor, expert, have been obtained. Second point is determining that the conclusion reached thereon have been implemented. तो ये थर्ड पॉइंट हुआ गाइस. नाउ मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट. एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. Mark it as an important point both for IPCC and CA final. Engagement quality control review. तो देखते हैं इसमें क्या कहता है. Engagement quality control review for audit of financial statements of listed companies and other companies for which there is requirement for an engagement quality control reviewer determine that whether appointment has been made. Next point, determine that whether the appointment has been made
discuss all important points with him, note date the audit report until the completion of review by engagement quality control reviewer. तो दिस इज़ अवर फोर्थ पॉइंट. अभी एक बार राइटअप के ऊपर ख़त्म होने वाला है, उसके बाद एक बार इसको अच्छे से समझेंगे गाइस. पॉइंट नंबर फिफ्थ, differences of opinion within the engagement team or with the outsider, that is auditor, expert, follow the firm policy, follow the firm's policy and procedure for resolving such differences. This is our point number 5, the last point of this essay, monitoring. Obtain reasonable assurance that firms' policies and procedures relating to quality control are relevant, adequate, and operating effectively. तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये ऐसे ख़त्म होता है. अब एक बार इसको देखते हैं. तो सबसे पहले क्या था गाइस कि ये हमारा स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी के ऊपर बात करता है. तो क्वालिटी के ऊपर ही हमारा ऐसे पर्टिकुलर ऐसे बात करता है. तो जो हमारा जैसे गाइस होता क्या है, जैसे हमारी फर्म में क्या था, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देता हूँ ज़्यादातर और आज भी दूंगा. हमारी फर्म में क्या था, अराउंड 12 पार्टनर्स थे. ठीक है. तो होता क्या था, जैसे डिफरेंट असाइनमेंट्स थे. तो पर्टिकुलर पार्टनर के पास अपना एक अलग अलग पर्टिकुलर जो है उसको असाइनमेंट डिवोट कर दिया जाता था और वो उस पर्टिकुलर असाइनमेंट के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. एंड ही हैज़ टू साइन, क्योंकि आपको पता ही होगा गाइस, जब हम ऑडिट रिपोर्ट जब हमारी साइन होती है तो विद द स्टैम्प ऑफ फर्म एटलीस्ट वन पार्टनर ऑफ द फर्म हैज़ टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट. तो गाइस जो पर्सन डेजिग्नेट होता था हमारी फर्म में, एंड ही इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर एंगेजमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग द वर्क टिल द डेट ऑफ साइनिंग द वर्क. मतलब वो पूरा तरह से उसको काम को अपने सिर के ऊपर मतलब ले लेता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. तो इसमें भी ये कहीं ना कहीं गाइस ये जो पूरा ऐसे है उसी के ऊपर बात करता है. तो आप एक बार जब अपने माइंड में एक ये चीज़ लेकर साथ में चलेंगे ना, उसके बाद एक बार ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको एक आसानी रहेगी. आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारी फर्म है, उसमें 10 पार्टनर्स हैं. 10 में से मिस्टर एक्स को हमने किसी पर्टिकुलर ऑडिट के लिए एंगेज कर दिया है. नाउ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल द वर्क विच द एंगेजमेंट टीम इज़ गोइंग टू परफॉर्म इन द पर्टिकुलर एंटिटी. ठीक है गाइस. तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट.
सबसे पहला पॉइंट वो बोलता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें वो वही बोलता है द एंगेजमेंट पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी। जो वर्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द क्वालिटी। क्वालिटी वर्ड अगर आपने नहीं लिखा इस पॉइंट में तो समझ लीजिए आपके 0 मार्क्स हैं गाइस, अगर ये पर्टिकुलर कुछ भी ये पर्टिकुलर लाइनें आपको लिखनी पड़ जाती हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। गाइस जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है उसको एथिकल रिक्वायरमेंट्स का काफ़ी ध्यान रखना होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे भी प्रोफेशनल एथिक्स में क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जैसे गाइस होता है क्या है कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, एक ऑडिट थी हमारे पास, किसी हाईली लिस्टेड कंपनी की ऑडिट थी। तो वहाँ पे हमारी एंगेजमेंट टीम गई थी जिसमें मैं भी गया था। तो मेरे साथ मेरे 2 कॉलीग्स और थे मेरे साथ में। तो हमने क्या किया गाइस, कुछ ना जो मेरा कॉलीग था एक पर्टिकुलर, तो उसने क्या किया, कुछ क्वेरी उसको मिली थी, उसको कुछ मिली। तो वो काफ़ी बड़ी क्वेरी थी, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अराउंड 50 to 60 लैक्स का उसका पर्टिकुलर, मेरे को अभी क्वेरी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही, मेरे ख्याल से सर्विस टैक्स की क्वेरी थी या कुछ ऐसी क्वेरी थी। तो उसका अराउंड 50 to 60 लैक्स उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा था। तो गाइस जब हमारे को पता लगी, हमने पहले एंगेजमेंट टीम हमने पहले डिस्कस करी अपनी पूरी टीम ने, फिर हमने जो अपने पूरे पार्टनर से जो इस असाइनमेंट के ऊपर डेजिग्नेट था उससे हमने डिस्कस करा। तो जब क्वेरी पता लगी तो हमने डिस्कस करा हमारे पार्टनर ने कहा पहले एक बार आप अपने पॉइंट पे डिस्कस कर लो क्वेरी। तो हमने डिस्कस की मैनेजमेंट के साथ। तो मैनेजमेंट ने हमारी बात सुनी, सब कुछ किया कि हाँ ठीक है कर लेंगे अगली बार से कर लेंगे, अभी इस बार आप इसको इग्नोर करो। तो जब बात नहीं बनी तो बाद में क्या हमें पता लगता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने जो इस क्वेरी को पूरा देख रहा था, वो जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन थे, जो मैनेजमेंट का जो ऑडिट कोऑर्डिनेटर होता है गाइस, जब भी आपको पता ही होगा कोऑर्डिनेटर होता है। तो कोऑर्डिनेटर आके उस बंदे से बोलता है कि छोड़ो यार ये क्वेरी क्या है, आप अगली बार देख लेना, अभी बताओ और क्या आपकी सेवा पानी कर सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर ये चीज़ जो सेवा पानी वाली चीज़ हो जाती है ना गाइस, दिस इज़ कॉल्ड अवर प्रोफेशनल एथिक्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि सेवा पानी कर देते हैं आपकी। ठीक है गाइस, अगर वो यहाँ पे मेरा कॉलीग जो है अगर उसको पर्सनल बायस हो जाता हो, कुछ भी हो जाता, तो हमारा जो क्वालिटी जो ऐसे 220 है वो ख़त्म हो जाता गाइस। मतलब हमारा तो लग ही नहीं पाता, हम तो मतलब नॉन कंप्लाइंस कर जाते हैं ऐसे 220 के साथ। वो नहीं माना, अड़ा रहा वो मैनेजमेंट के साथ, और तो ऐसी हमारी फिर बात आगे वो रिजॉल्व हो गई थी। खैर तो चलो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यही रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स में यही बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस विद ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है गाइस। फिर थर्ड पॉइंट है गाइस इंडिपेंडेंस का। मतलब जो भी है इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मेरी जो इसमें मैं मान लो एंगेजमेंट टीम के मैं गया हूँ और मेरे मान लो मेरे मामा जी वहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी वर्किंग करते हैं और उनकी कोई गलती मेरे को मिल गई है तो मैं छुपा लूँ उनकी गलती, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरी इंडिपेंडेंस के साथ वहाँ पे काम करना है। थर्ड पॉइंट इज़ मेंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। गाइस होता क्या है, जैसे अभी जो कंपनीज एक्ट में गाइस आपने पढ़ा होगा, जो सेक्शन आया 139, उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 5 साल से ऊपर हम जो है पर्टिकुलर कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। तो गाइस दिस शुड बी द वेरी बहुत ही अच्छा है ये डिसीज़न है। क्यों अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। गाइस होता क्या था, कंपनियाँ जो हैं 10-10 20-20 साल से उनके सेम ऑडिटर चलते रहते थे और उनकी एकदम पूरी परफेक्ट ट्यूनिंग बैठ जाती है उस ऑडिटर के साथ। उनको ये इतना ही पता लग जाता है कि ऑडिटर साहब आए हैं, ये चाय में चाय में चीनी 1 चम्मच लेते हैं या 2 चम्मच, उनको इतना तक पता लग जाता है गाइस। तो वो हर एक चीज़ से उनकी वाकिफ़ हो जाते हैं, उनको पता है इसको कैसे पटाना है, सब कुछ करना है, तो वो उनकी सेटिंग मेंटेन रहती है। तो गाइस होता क्या, 5-6 साल बाद वो सिचुएशन आ ही जाती है। तो वही क्लाइंट रिलेशन होता है जो हमारा अपना रिलेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल रिलेशन, वो ये इस पॉइंट में कहता है कि उसको मेंटेन करके हमें चलना चाहिए। देन द पॉइंट नंबर 5 इज असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम।
जो गाइस एंगेजमेंट टीम जाती है वो जैसे मान लो गाइस हमारे पास है बैंक ऑडिट थी, और बैंक ऑडिट में भी पर्टिकुलरली हमारे पास जो ब्रांच थी वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट ब्रांच थी, जिसमें फोरेंसिक का फॉरेन एक्सचेंज का काम होता था। तो गाइस उसके लिए क्या होता था, पर्टिकुलर हमारी जो फर्म में से पर्टिकुलर कुछ 3 to 4 पर्सन्स जाते थे। वो काफ़ी क्वालिफाइड तो नहीं, खैर होते तो वो भी हमारे जैसे ही थे, बट ठीक है, उनको काफ़ी नॉलेज, उनको काफ़ी पहले ट्रेन करा जाता था, सब चीज़ उनको मतलब समझाया जाता था कि कैसे आपको करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे गए सब कुछ होता है, डीलिंग रूम वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पे। तो नॉर्मल बंदा अगर कोई जाएगा वहाँ पे तो वो नहीं कर पाएगा वहाँ पे काम। फॉरवर्ड एक्सचेंज जैसे हम एसएफएम में पढ़ते हैं ना गाइस, फॉरवर्ड ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स, वहाँ पे प्रैक्टिकल हमें देखने को मिला था गाइस। इट वाज रियली ए मेमोरेबल, यू नो, that's a very learning good for learning if you are going to the bank audit, and in bank audit पर्टिकुलरली आप उस ब्रांच में जा रहे हो जहाँ पे फॉरेक्स डीलिंग होती है, या पूरा बैंक की इन्वेस्टमेंट का जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं, मेरे को अब ध्यान आया एग्जैक्ट नाम, ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है गाइस वो बैंक का। हम वहाँ पर ऑडिट करने गए थे। तो गाइस वहाँ पे एकदम लाइव, जैसे वो कंप्यूटर डीलिंग रूम, मतलब कंप्यूटर के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हेडफोन लगा के बैठे हुए हैं, आगे स्क्रीन लगी हुई है बड़ी सी, वहाँ पे इग्नो उसमें इंडिया जो भी चैनल आते हैं पर्टिकुलर कि आज शेयर का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, 2400 घंटे वहाँ पे वो स्क्रीन चलती है, सब कुछ। मतलब ऐसा एक लगता है ना गाइस, एक इन्वायरमेंट इतना मतलब कि बहुत ही मतलब गुड है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर करना गाइस। तो ये क्लाइंट रिलेशन हो गया, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट टीम जो पर्सन वहाँ पे जाएंगे उनको पता होना चाहिए कि वो क्या काम करना है, मतलब क्या सब कुछ करना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब गाइज ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये एक ही क्वेश्चन है। तो एंगेजमेंट, अब वो कहता है कि जो परफॉर्मेंस करेंगे उसके ऊपर कैसे एंगेजमेंट जो पार्टनर है वो ध्यान दे सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि डायरेक्शन, वो डायरेक्शन देगा, सुपरवाइज करेगा, परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन हुई है या नहीं हुई, सब चीज़ें। और it should be confirmed that we are making an opinion or we are reached a particular conclusion after having sufficient and appropriate audit evidence। ठीक है गाइस, तो हमें sufficient and appropriate audit evidence हमें मेंटेन करने हैं। गाइस आपको शायद मैंने पिछली अपनी जब ऐसे 200 कर रहे थे सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस का मतलब बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट, बताइए गाइस, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। सफिशिएंट मीन द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड द अप्रोप्रिएटनेस मीन्स क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सो सफिशिएंट, सो वी रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो ये हमारा ये 6 पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट रिव्यू। गाइस रिव्यू जो भी हमारी फर्म की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हम जो अपनी एंगेजमेंट टीम का एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करेगा। फिर ये आता है गाइस कंसल्टेशन कि एंगेजमेंट पार्टनर शुड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर पर्सन, जैसे उसने 20 लाख की 50 लाख की वहाँ पर गलती पकड़ी थी, तो वेदर ही हैज़ कंसल्टेड विद द एंगेजमेंट टीम, और इफ़ देयर इज़ एनी ऑडिट एक्सपर्ट देयर ही हैज़ टू कंसल्ट विद देम ऑल्सो। तो उसने हमारे से कंसल्ट करा था, उसने ऑडिट एक्सपर्ट हमारा खैर वहाँ पे नहीं था तो उसने हमारे से कंसल्ट करा था। अगर वहाँ पे ऑडिट एक्सपर्ट कोई भी बाहर का बंदा भी आया होता जो हमारी टीम में होता तो उसको भी वो कंसल्ट करता पहले। तो वही बोला है उसने कि एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा कि वेदर द पर्सन इज़ वेदर द पर्सन, उसने जो कंसल्ट कर लिया है उन सब से या नहीं किया, उसी के बाद हम अपने एंगेजमेंट पार्टनर को इन्फॉर्म करेंगे। लास्ट पॉइंट इज़ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है आईपीसीसी वालों के लिए कम पॉइंट है, लेकिन फाइनल के लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें वो बोलता है कि जो अगर हम किसी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हैं, किसी ऐसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हैं जहाँ पर जो मतलब उसको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करना ज़रूरी है, तो हम देखेंगे वो इज़ व्हाट डू यू मीन बाय एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। गाइस ही इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिव्यू आवर वर्क, to review the work of auditor
एंड वो इज़ आउटसाइड फ्रॉम आवर फर्म। ठीक है गाइस, तो ये हमारी फर्म के बाहर का बंदा होता है जो हमारा काम देखता है कि हमने ठीक से किया है या नहीं किया। तो उस केस में देखना है कि वेदर द पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एंड द एंगेजमेंट टीम हैज़ डिस्कस द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विद हिम, एंड एंगेजमेंट पार्टनर शुड नोट साइन द ऑडिट रिपोर्ट until the completion of his review। ठीक है गाइस, तो फिफ्थ पॉइंट इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर किसी एंगेजमेंट टीम में किसी दो पर्सन्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो हम फर्म की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि क्या प्रिवेल करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ मॉनिटरिंग। हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए कि हाँ ये बंदा वहाँ पर। अब मॉनिटर का गाइस मैं एक आपको अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। होता क्या था गाइस, हम सब इसी स्टेज से गुजरते हैं, हमारी क्लासेस भी होती हैं, सब कुछ होता है और हमें ऑडिट पर भी जाना होता है। तो मैं अपना ही बात बताता हूँ, मैंने कोई क्लास ज्वाइन करी थी, तो क्लास के लिए हमें वहाँ पर 4 बजे पहुँचना होता था मेरे हिसाब से। हाँ 4 to 7 या 7:30 बजे तक की क्लास होती थी। तो हम वहाँ से अपने क्लाइंट ऑफिस से 3:30 बजे निकलना होता था। तो अब अगर उससे पार्टनर से पूछें तो वो तो गाइस आपको पता ही है निकलने देते नहीं हैं।